बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आफियत में होंगे और अल्लाह मियां हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है उसको बता दूँ कि वी आर गोइंग टू डिस्कस pelvic inflammatory disease, that is PID। उसका है एब्रीवेशन PID। ठीक है जी। इसके 2 लेक्चर्स होंगे। पहला जो है आज मैं ले रही हूँ जिसमें कि हम लोअर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिस्कस करेंगे। तो सेकंड लेक्चर विल बी टेकन बाय डॉक्टर आमना। शी विल डिस्कस whole of the upper genital tract infections, pelvic inflammatory disease and the complications related to the PID। ठीक है जी। अब आपको सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि which organs or structures are included in the lower genital tract and which are included in the upper genital tract। So lower genital tract will include the external genitalia, then vagina and then cervix। So vaginitis and cervicitis we will discuss today, and then comes the cervix के बाद obviously uterus। तो infection of the endometrium is called endometritis, then infection of the fallopian tube is called salpingitis, infection of the ovaries will be uveitis, and then the disseminated infection that will be involvement of the whole pelvic cavity and formation of the pelvic abscess or pelvic mass। So today we will discuss the lower genital tract infection. Briefly, we will go through the anatomy and physiology of the lower genital tract, and then we will discuss the infections one by one. So in young females, the vagina is lined with a simple cuboidal epithelium. The length of the vagina is a slit-shaped opening, and its interior wall is 5 centimeter in length and the posterior wall is 7 centimeter in length। Posterior wall जो है, that's why जो posterior pouch है that is formed between the uterus and the rectum, that is rectovaginal pouch or pouch of Douglas, or posterior pouch that is deep as compared to the anterior pouch। Anterior pouch is between the uterus and the bladder, uterovesical pouch, and क्योंकि उसकी लेंथ जो है एंटीरियर वॉल की 5 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई इट इज शेल्फ। ठीक है जी। पीएच इज न्यूट्रल नॉर्मल फीमेल्स, यंग फीमेल में, एंड इट इज कॉलोनाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू स्किन कोमेंसेस। एपिथेलियम क्यूबॉइडल हो गया, पीएच न्यूट्रल हो गई, और एपिथेलियम जो है इट्स कॉलोनाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू स्किन कोमेंसेस। एट प्यूबर्टी, आफ्टर द इफेक्ट ऑफ estrogen, it becomes stratified squamous epithelium। ठीक है जी। lactobacilli becomes the predominant organism and the pH it become acidic। ठीक है। acidic जो pH है that is a very important role, क्योंकि अगर pH जो है ये acidic से alkaline हो जाए तो it will lead to lower genital tract infections। So pH is 3.5 to 4.5, and after menopause the changes again revert back। क्यों? Because of the withdrawal of the estrogen, ओवियन फंक्शन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, और वो चेंजेस जो कि एट द प्यूबर्टी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आती हैं वो वापस हो जाती हैं। एंड सो आफ्टर मेनोपॉज द वैजिनल एपिथेलियम बिकम स्टार्ट एट्रोफिंग, bacterial flora becomes similar to that of the skin, and the pH again rises to 7। ठीक है जी। तो ये जो pH है एसिडिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हर किस्म की जो वेजाइनल इन्फेक्शन है उनसे पेशेंट फीमेल को प्रिवेंट करती है। Now we will discuss physiological discharge। It is important to differentiate from normal physiological changes from true infections। Why? Because the most common presenting complaint in the gynae OPD is the It is important to differentiate normal physiological changes from true infections। क्यों? इसलिए कि नॉर्मल जो वैजिनल डिस्चार्ज है दैट इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट। सबसे जो कॉमन कंप्लेंट है वो वैजिनल डिस्चार्ज ही होती है। ठीक है। तो उसकी वजह से पेशेंट आते हैं, और उसमें डिफरेंशिएट करना
कि ये नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। तो ये एक किसी भी डॉक्टर को ये बेसिक चीज़ें पता होंगी तो दे कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम द नॉर्मल टू एबनॉर्मल डिस्चार्ज। The normal discharge is usually white in color. It has become yellowish on contact with the air. ठीक है, it is non-offensive. और इसमें इस constituent क्या है? It consists of desquamated epithelial cells, mucus, bacteria, and fluid. And it is formed from the transoidate from the vaginal wall. ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है कि नॉर्मल जो वजाइनल वॉल से सिक्रेशंस आ रही होती हैं वो जो है वो इसका नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की कंपोजिशन में उसी कंपोजिशन में होती है। फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू increased mucus production from the cervix in mid cycle under the effect of progesterone. Mucus में changes आती हैं under the effect of estrogen and progesterone, वो thin होती है। After the ovulation the mid cycle जो है वो discharge जो होता है वो thick हो जाता है, उसके बाद जो है वो उसी consistency जो है वो change हो जाती है। प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है उसी वो इंक्रीज कर जाता है in the patient taking combined oral contraceptive pill. तो ये चीज़ें जो हैं जब आप हिस्ट्री लेते हो पेशेंट कंप्लेन के डिस्चार्ज इज एबनॉर्मल, आपने ये चीज़ें पूछनी है कि किस टाइम के ऊपर डिस्चार्ज एबनॉर्मल होता है, वेदर शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, और वेदर शी इज़ टेकिंग एनी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और नॉट। ठीक है जी, ये बेसिकली नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। सो नाउ वी विल कम टू पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में अपर और लोअर जेनिटल ट्रैक्ट जैसे मैं आपको बता दिया हुआ है। तो अपर में हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लोअर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट विल इंक्लूड बैक्टीरियल, फंगल, वायरल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन वन बाय वन। So vaginitis is the most common gynecological condition encountered in outpatient। यानी कि अगर आप उसके स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें 50% से ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं वो लोअर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद होते हैं और उसके बाद मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के साथ आते हैं। It is defined as the spectrum of conditions that cause vulvovaginal symptoms such as itching, burning, irritation, and abnormal discharge. And these are the three most common culprits: bacterial vaginosis, genital infection, and trichomonas. Percentage आपके सामने है, डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे। That is 40 to 45%, 20 to 25%, and 15 to 20%. ठीक है जी, these are the common organism which cause infection. इसमें जो है लो जेनरल कैंडिडेसिस वो आपको पता है कि ये जो है फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस बैक्टीरियल है, ट्रिकोमोनास जो है प्रोटोजोआ इन्फेक्शन। और सिम्टम मरीज से आपने क्या पूछे होते हैं, पेशेंट क्या कहता है, डिस्चार्ज की कंप्लेंट, डिस्चार्ज का क्वेश्चन आपने करने हिस्ट्री में कि व्हाट इज द कलर ऑफ द डिस्चार्ज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द it has a smell or it is without any smell, ये सबसे important है। it is causing itching or it is non itching, ये मेन सवाल आपने पूछना होता है जब पेशेंट कोई भी प्रेजेंट करती है। what is the time of the discharge in relation to the menstrual cycle, ये क्वेश्चन जो है बड़ा important है regarding the discharge. so one by one we will discuss. सबसे पहले जो सबसे कॉमन है जो कॉम्प्लिकेशंस भी करता है, स्पेशली ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस, इट इज द पॉजिटिव ऑर्गन of preterm labor and preterm in most of the cases, that is the bacterial vaginosis. It is the common cause of vaginitis in premenopausal women. It represents a complex change in normal vaginal flow. It is not an inflammation. सबसे important बात इसमें ये याद रखने की है, इसमें सिर्फ ये है कि जो vaginal environment है जो कि एक normal physiological environment आपने पढ़ा कि उसमें जो lactobacilli है that is the commensal and the pH is acidic, वो change हो जाती है। तो होता क्या है कि दिस डिक्रीज इन द लैक्टोबैसिली, इंक्रीज इन द गार्डनेला वैजिनालिस, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, एनारोबिक रॉड्स और मोबिलिंकस स्पीशीज भी जो है, चार जो ऑर्गेनिज्म है दैट आर द रिस्पांसिबल। एग्जैक्ट मैकेनिज्म बाय व्हिच चेंजेस टेक प्लेस इज अनक्लियर, बट इट इज नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। इन्फ्लेमेशन नहीं होती, सिर्फ उसकी जो एनवायरनमेंट है वेजिना का दैट इज चेंज। क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड 50% आर एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं होते पेशेंट को। सेकंड, द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज अनप्लेजेंट फिशी स्मेलिंग डिस्चार्ज। ठीक है जी, फिशी ऑर्डर होती है, पेशेंट की कंप्लेन करती है कि स्मेल आती है स्पेशली फ्रॉम द अंडर गारमेंट्स, जो भी है गारमेंट्स है उससे वो पेशेंट आपको आगे बताएगी कि जी स्मेल आती है। ठीक है जी,
उसके बाद इचिंग एंड इन्फ्लेमेशन आर अनकॉमन, इचिंग की कंप्लेंट नहीं होती और इसी तरह जो है इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती। इट इज़ मोर कॉमन इन ड्यूरिंग एंड फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है जी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसका रिलेशन है। और उसके अलावा जो है कलर क्या है, क्रीमी और ग्रेश वाइट विजाइनल डिस्चार्ज। तस्वीर में आप पिछली में देख सकते हैं, क्रीमी वाइट थिन डिस्चार्ज होता है, कैंडिडा की तरह थिक नहीं होता, क्रीमी वाइट ग्रेश डिस्चार्ज है, दैट इज द टिपिकल फीचर। नाउ व्हाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ठीक है जी। 3 क्राइटेरिया इसके, एक एमसेल क्राइटेरिया है, एक इसका हेसन्स हे आइसोन्स क्राइटेरिया और न्यूजेंट क्राइटेरिया। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको ये आता है तो दैट इज इनफ, दैट इज एमसेल क्राइटेरिया, ठीक है जी। एमसेल क्राइटेरिया क्या है, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं वो सबसे पहले कि नेकेड आई एग्जामिनेशन पे जब आप पेशेंट आता है, ऑब्वियसली जब भी डिस्चार्ज का पेशेंट आएगा तो प्रोटोकॉल क्या है कि ऑब्वियसली जिस तरह हर पेशेंट को देखने का प्रोटोकॉल है, आपने हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री के बाद आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन। लोकल एग्जामिनेशन पे इन डॉर्सल पोजीशन ओपीडी में पेशेंट को प्रॉपर्ली कवर करके तो सबसे पहले आप नेकेड आई एग्जामिनेशन करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल जेनिटलिया, देन यू विल इंसर्ट द कस्को बाइबल कस्को स्पेकुलम। कस्को स्पेकुलम के ऊपर जब आप प्रॉपर्ली वेजिनल वॉल्स और सर्विक्स को एक्सपोज कर लेते हैं तो आपको ये पिक्चर नजर आती है, जो कि इसमें इस पिक्चर में आपको नजर आ रही है, क्रीमी वाइट डिस्चार्ज है। तो ये एक डायग्नोस्टिक है, इसको आपको देखने से नजर आ जाएगा कि होमोजेनस ग्रेश वाइट डिस्चार्ज है, थिन होता है। अगर इसको कैंडिडा के डिस्चार्ज से कंपेयर करें तो वो थिक डिस्चार्ज होता है। पीएच, अगर आपके पास पीएच स्टिक्स हैं, पीएच स्टिक्स अवेलेबल होती हैं तो आप पीएच अगर चेक करें तो इट विल बी मोर देन 4.5, इट विल बी नॉट बी एसिडिक। देन इज द पॉजिटिव विफ टेस्ट, वो हम आगे मैं बताती हूँ कि वो क्या होता है। ओक्लूज सेल्स ऑन द वेट माउथ, तो ये इसके 4 क्राइटेरिया, ये आपको आने चाहिए। इट इज अ कॉमन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। देयर शुड बी एटलीस्ट 3 क्राइटेरिया फॉर डायग्नोजिंग बीवी, तो बक्टीरियल वेजिनोसिस के डायग्नोसिस के इन 4 में से 3 का होना लाजमी है। फ्लू सेल्स आर द मोस्ट रिलायबल प्रेडिक्टर ऑफ बक्टीरियल वेजिनोसिस। तो ये फ्लू सेल्स हम आगे चल के देखते हैं कि क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये तो अब हमने जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आया तो हमने सबसे पहले तो उसको हिस्ट्री के बाद जिसने स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया तो नेकेड एग्जामिनेशन आ गया। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड वेट माउंट। वेट माउंट क्या होता है कि सिंपल माइक्रोपिपेट से डिस्चार्ज लेके उसको एक प्लेन स्लाइड के ऊपर रखते हैं। माइक्रोस्कोप अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास ओपीडी में, ठीक है जी। उसको आप उसके ऊपर एक सलाइन का ड्रॉप डालें, कवर स्लिप लगाएं और डायरेक्टली उसी वक्त फौरन आप उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर लें, ठीक है जी। तो दैट इज कॉल्ड द वेट माउंट, इसको कहते हैं। इट इज अ सैंपल वाजाइनल डिस्चार्ज फ्रॉम द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। माइक्रोस्कोपी पे आप क्या नजर आएगा, ल्यूकोसाइट नजर आएंगे, लैक्टोबैसिलाई नजर आएंगे, फ्लू सेल्स नजर आएंगे, यीस्ट नजर आ सकते हैं, कैंडिडल इन्फेक्शन भी हो सकती है, ट्रिकोमोनाइड भी हो सकते हैं। उसके बाद आप वेब टेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, अगर आपके पास 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो आप उसके ऊपर ऐड करें तो यू विल हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फिशी ओडोर ऑफ द बैक्टीरियल वेजिनोसिस, दैट इज डायग्नोस्टिक, ठीक है जी। पीएच हमने चेक कर ली, हमने नेकेड एग्जामिनेशन कर लिया, हमने पीएच चेक कर ली, हमने विफ टेस्ट कर लिया और हमने फ्लू सेल्स देख लिए माइक्रोस्कोप पे आफ्टर द वेट माउंट। तो दीज आर द एमसेल क्राइटेरिया। ये 4 जो पॉइंट्स हैं ये एमसेल क्राइटेरिया में आते हैं। अब आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि फ्लू सेल्स क्या हैं। इट इज आर द एपिथेलियल सेल्स व्हिच आर कवर्ड विद बैक्टीरिया गिविंग अ कैरेक्टरिस्टिक स्टिप्ल्ड अपीयरेंस ऑन द एग्जामिनेशन। ये हाई पावर में और लो पावर में आपको नजर आ रही है कि एक जो है तो एक सेल है एपिथेलियल सेल, उसके हर तरफ जो है वो स्टिप्ल्ड से अपीयरेंस छोटे 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 जो है बैक्टीरिया वो है एडहेरेंट है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लू सेल, दैट आर द डायग्नोस्टिक फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ठीक हो गया जी। तो ये इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं हे आइसोन्स क्राइटेरिया, ठीक है जी। दिस इज अ मॉडिफाइड आइसोन्स हे स्कोरिंग सिस्टम सजेस्ट 5 ग्रेड ऑफ फ्लोरा, ग्रेड 0 to grade 4, सॉरी। So grade 0 में epithelial cells are normal looking, there will be no flu cells, so no bacteria. Number 2 is normal vaginal flora,
लैक्टोबैसिलाई मॉर्फाइट्स अलोन। ठीक है जी। नंबर 3 में आ जाता है रिड्यूस नंबर ऑफ लैक्टोबैसिलस मॉर्फोटाइप्स विद द मिक्स्ड बैक्टीरियल फ्लोरा, एंड थर्ड इज द मिक्स्ड बैक्टीरियल फ्लोरा ओनली। जाहिर है वो नॉर्मल जो है वो उसमें जिस तरह ग्रेड से चल रहे हैं उसी तरह से नॉर्मल चीज़ खत्म हो रही है और अब नॉर्मलिटी बढ़ती जा रही है। तो ग्रेड 4 में, ग्रेड 3 में मिक्स्ड बैक्टीरियल फ्लोरा होंगे, फ्यू और एब्सेंट लैक्टोबैसिलस मॉर्फोटाइप्स, और जो है ग्रेड 4 है उसमें ऑब्वियसली ग्राम पॉजिटिव हो पाए हैं। तो ये फ्रॉम 0 to 4 ग्रेड है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा एमसेल क्राइटेरिया पूछा जाता है। उसके बाद आ जाता है न्यूजेंस क्राइटेरिया। इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ एनारोबिक स्पीशीज। 0-3 इज कंसिडर्ड नेगेटिव फॉर बेबी, उसमें काउंट किया जाता है। 4 to 6 इज कंसिडर्ड इंटरमीडिएट एंड 7+ इज कंसिडर्ड पॉजिटिव और इंडिकेटिव ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसके अलावा आपकी पुरानी बुक में मेरे ख्याल में ये तीनों क्राइटेरिया हैं जो 19th एडिशन में है, लेकिन जो नई वाली बुक है उसमें सिर्फ एमसेल क्राइटेरिया है। एमसेल क्राइटेरिया ही ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन एटलीस्ट आपको नाम आने चाहिए। Treatment may resolve spontaneously, but it is less likely. So the treatment of choice is metronidazole. Common drug है. Oral divided doses achieve early clinical cure in excess of 90% cure rates of approximately 80% in 4 weeks. डोज क्या देनी है? 400 मिलीग्राम पर ओरम ट्वाइस अ डे फॉर 5 days, 5 से ज़्यादा 7 days तक भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो है इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वैजाइनल रूट भी है। इसकी जेल आती है मेटनी जेल के नाम से। इट इज़ अप्लाइड एट नाइट फॉर 5 to 7 days। ठीक है जी। इसके अलावा जो मीटरनेडोजोल 2 ग्राम की सिंगल स्टैंड डोज में मिलती है, 2 टैबलेट्स होती है 1 ग्राम की। दे अचीव सिमिलर अर्ली क्योर बट नोन टू बी हैव हाई रिलैप्स रेट। तो बेहतर तो यही है कि आप 5 to 7 days के लिए दें, और उसे कहते हैं इसको हम 5 to 7 days ताकि रिलैप्स ना हो। लेकिन इसमें रिलैप्स इज़ वेरी वेरी कॉमन विद बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अक्सर पेशेंट बार बार इसी कंप्लेंट के साथ आती हैं, और जो है ये प्रॉब्लम्स जो है वो उससे कहते हैं इसी प्रॉब्लम से बार बार पेशेंट जो है ओपीडी में ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस आती है, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। उसके बाद जो सेकंड ड्रग है दैट इज क्लिंडामाइसिन। इसकी एफिकेसी एज कम्पेयर टू जो है मीटरनेडोजोल बेहतर है। अक्सर पेशेंट रेजिस्टेंट हो चुकी होती है मीटरनेडोजोल से। तो क्लिंडामाइसिन की डोज क्या है? 300 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 7 days। ये ओरल डोज है। और जो टॉपिकल वैजाइनल क्रीम्स जो भी अवेलेबल हैं, जो कि 5 to 7 days के लिए वैजाइनल एप्लीकेशन एडवाइस की जाती है, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसका साइड इफेक्ट क्या है? ओरली का सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, डायरिया भी काफ़ी सीवियर होता है, इसलिए पेशेंट में एक्सेप्टेबिलिटी कम है। इसलिए बेहतर यही है क्लिंडामाइसिन को ज़्यादातर ओरल रूट से वैजाइनल रूट से ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है प्रेगनेंसी एंड बैक्टीरियल वेजिनोसिस का, क्योंकि ये मिसकैरेज जिसमें मैंने बताया था सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज और प्री टर्म लेबर की कॉमन कॉज है। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैन लीड टू लेट सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड प्री टर्म लेबर। ठीक है। सेंडिंग इन्फेक्शन होती है, कोरियोडिसिडुअल मेम्ब्रेन को ये इन्फेक्ट करती है, कोरियोमाइटिस होता है, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। प्री टर्म डिलीवरी और प्री टर्म बेबी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है प्री टर्म जो है प्री मेच्योरिटी जो है वो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द बेबी। ठीक है जी। हर किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है, नर्सरी एडमिशन बढ़ जाता है, पेरिनेटल मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी सब कुछ बढ़ जाता है। So women with a previous history of second trimester loss or preterm delivery should be examined for bacterial vaginosis, and if it is positive, they should be treated. So हर patient जिसमें की history है, एक तो patient ये है कि जो खुद बता रही है कि मुझे symptoms हैं, वो डिस्चार्ज की कंप्लेंट कर रही है, तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन इज मस्ट। ये कोई मिसकंसेप्शन है कि प्रेगनेंसी में आप एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल रॉन्ग है। स्पेकुलम एग्जामिनेशन स्टरलाइज स्पेकुलम एग्जामिनेशन इज इंडिकेटेड अगर पेशेंट कंप्लेन कर ली है वैजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है। दूसरी बात ये अगर हिस्ट्री देती है सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस और प्री टर्म डिलीवरी 28 पे 29 पे 32 वीक्स पे, तो एंटीनेटल क्लिनिक में आपने उसको एग्जामिनेशन लाजमी करना है। अगर वो डिस्चार्ज की कंप्लेंट नहीं भी करती तो यू शुड गो फॉर द एग्जामिनेशन, एंड इफ देयर इज अ बैक्टीरियल वेजिनोसिस डिस्चार्ज इज प्रेजेंट शी शुड बी ट्रीटेड। ठीक है जी। ताकि आपके आगे लेट कॉम्प्लिकेशन उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लाजमी है। मीटोनोजल इज सेफ इन प्रेगनेंसी, तो सेफली दी जा सकती है रोलर रूट से भी और वैजाइनल रूट से भी।
इसमें कोई ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद PID, बैक्टीरियल वेजिनोसिस एंड पोस्ट हिस्टेक्टमी वजाइनल कफ सेल्यूलाइटिस। तो पोस्ट हिस्टेक्टमी भी जो है पेशेंट को वेजिनाइटिस की कंप्लेन हो सकती है, इसलिए बिफोर हिस्टेक्टमी एवरी टाइप ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन शुड बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। ठीक है जी, तो ये आपने पढ़ लिया बैक्टीरियल वेजिनोसिस। नाउ वी विल डिस्कस वल्गो वजाइनल कैंडिडाइसिस। Vulvovaginal candidiasis it accounts for 1/3 of the cases. ठीक है जी, up to 75% of the premenopausal women have at least one episode. It is also a very common condition, especially during pregnancy. और ये भी कॉमन कंप्लेंट है जिसकी वजह से फीमेल प्रेजेंट करती हैं ओपीडी में. Rare before menarche, but 50% will have it by the age of the 25. Less common in postmenopausal women unless taking estrogen. अगर HRT पे है पेशेंट, सॉरी जो वुमेन है, तो ज़्यादा चांस है कि उसको कैंडिडाइसिस हो सकता है. ठीक है जी. Candida albicans is the most common causative organs. It is a yeast commonly found in the vagina, mouth, and on skin. It is an opportunistic pathogen and cause yeast infection and thrush when there is a change in the normal body's normal flora. For example, if the patient is taking antibiotic, prolonged use of antibiotics जो होते हैं, जो कि अक्सर इनकी रूटीन होती है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो उसमें ऑब्वियसली इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसमें फंगल इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है. ठीक है जी, बाकी आपने माइक्रोबायोलॉजी में इसकी डिटेल तो पढ़ी होगी. What are the predisposing factors? Predisposing factors की ये लिस्ट है, ये आपने सवाल पूछना होता है. ठीक है जी, तो ये आपको पता चल जाता है कि ये पेशेंट हाई रिस्क फॉर इन्फेक्शंस है. उसमें क्या पूछना है? इम्यूनोसप्रेशन. कोई रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे तो नहीं है. HIV वाले पेशेंट ऑब्वियसली दे आर एट हाई रिस्क. देन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, पेशेंट ऑन स्टेरॉइड्स. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हमारे पास जो अक्सर पेशेंट 45-50 की एज में आते हैं, अक्सर जो कैंडिडाइसिस के साथ आते हैं और वो मोस्टली जो होते हैं वो डायबिटिक भी होते हैं. तो डायबिटीज इज अ predisposing factor for vaginal candidiasis. Then is the vaginal douching, bubble bath, shower gel, they alter the normal vaginal flora. Increase estrogen, like patient on HRT और combined oral contraceptive pills जो कि ले रही हैं उनमें ज़्यादा चांस है. प्रेगनेंसी में क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन हुई होती है उसमें भी काफ़ी चांस है इसका कैंडिडाइसिस का. प्रेगनेंसी में इट्स अ कॉमन इन्फेक्शन जो कैंडिडल इन्फेक्शन है. उसके बाद अंडरलाइन कोई और स्किन डिजीज है लाइक डर्माटोसिस, एक्जिमा और उसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपने जब पेशेंट हिस्ट्री दे रही है और स्पेशली अगर वो रिपीटेड वेजाइनल इन्फेक्शंस के साथ आ रही है तो ये सारे फैक्टर्स आपने हिस्ट्री में रूल आउट करने होते हैं. दे आर मस्ट. उसके बाद आ जाते हैं कि अदर नॉन एल्बिकन जो स्पीशीज हैं, देयर आर कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, गैलबार्ट्रा, हुसाई, पैरासिलोसिस. तो ये डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन मेनली जो है वो कैंडिडा एल्बिकन्स है. अच्छा जी, साइन एंड सिम्टम्स. सबसे पहले तो वल्वोवैजिनल प्लूराइटिस, इचिंग, पेशेंट कंप्लेंट विद मार्क्ड इचिंग, इचिंग इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इरिटेशन, सोरनेस, डिस्परोनिया. Also it causes urethritis, तो पेशेंट हैव कंप्लेन ऑफ बर्निंग विक्टोरेशन. ठीक है जी. एग्जामिनेशन के ऊपर बिकॉज ऑफ द रिपीटेड इचिंग जो स्किन सारी होती है वल्ला वजाइना की एंड मिड थाइस की, सब पिक्चर में आप देख सकते हैं, इट विल बी रेड, एक्सफोलिएशन हुई होती है, सैनिटेशन हुई होती है एंड पेशेंट्स हैव कंप्लेंट ऑफ बर्निंग विक्टोरेशन. पीएच अगर चेक की जाएगी तो इट्स नॉर्मल पीएच. पीएच में जो नॉर्मल एसिडिक पीएच है 3.5 to 4.5 हुई होगी एंड देयर विल बी वल्वल एडिमा. सो उसके बाद अगला स्टेप है जिसमें मैंने बताया कि हिस्ट्री एग्जामिनेशन और उसके बाद जो है हिस्ट्री के बाद स्पेकुलम एग्जामिनेशन. स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे भी मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कैंडिडाइसिस है वो बिल्कुल क्लियर कट डायग्नोज हो जाता है. थिक डिस्चार्ज होता है, चीजी सा मटेरियल होता है दैट इज एडहेरेंट टू द वजाइनल वॉल्स, तो बड़ा इजीली डायग्नोज हो सकता है. अगर आप एक दो दफ़ा भी देख लें अगर वजाइनल कैंडिडाइसिस तो आप पूरा लाइफ टाइम के लिए आप उसको बड़े इजीली डायग्नोज कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है वेट माउंट. वेट माउंट में पीएच विल बी नॉर्मल. पीएच चेक करेंगे अगर हम पीएच 6 से. वेट माउंट जब बना के देखेंगे तो यू विल सी यीस्ट, बर्ड्स और स्पोर्स और हाइफे. ठीक है जी.
अगर पोटाशियम हाइड्रोजन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो इट डिस्ट्रॉय सेलुलर मटेरियल्स टू फैसिलिटेट रेकग्निशन ऑफ बडिंग हीस्ट और हाई पे 70% सेंसिटिविटी इस टेस्ट की। नेगेटिव इज अप टू 50% ऑफ कल्चर प्रूवन कैंडिडल इन्फेक्शन, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में 50% नेगेटिव भी होते हैं तो आप कल्चर से उसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए ये भी वेट काउंट पे भी इजीली डायग्नोज हो जाता है, इसलिए हम मोस्ट ऑफ द केसेस में कल्चर के लिए नहीं जाते। कल्चर के लिए क्यों नहीं जाते? बिकॉज हमारे भी पेशेंट्स हैं, एक तो वैसे ही पाकिस्तानी कौम में सब्र नहीं है, तो इससे उनको जल्दी होती है कि फ़ौरन डायग्नोज किया जाए, हमें लंबे चक्रों में ना डाला जाए, टेस्टों के लिए दिया जाए। तो टेस्ट ऑब्वियसली जो है कल्चर का जो टेस्ट होता है मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 डेज में, 3 डेज और मैक्सिमम 10 डेज में होता है। इसलिए यूजली एम्पिरिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है बेस्ड अपॉन द एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। जो हमारी एग्जामिनेशन नेकेड आइट की फाइंडिंग्स है या वेट काउंट की फाइंडिंग है, उसी के ऊपर हम ज़्यादा डायग्नोज करके तो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे देते हैं। वजह आपको मैंने बता दी है कि पेशेंट की कंप्लायंस इतनी बेहतर नहीं होती है, दे अवॉइड जो एक्सपेंसिव टेस्ट है उनको वो यूजली अवॉइड करते हैं, ठीक है जी। ट्रीटमेंट क्या है? मोस्ट अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस इंप्रूव with therapy within 2 days. Severe infection may require treatment up to 14 days. Clinical cure rates in excess of 80%. No one therapy or route of administration is superior to other. ठीक है जी। तो इसमें आप लोकल भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं ट्रीटमेंट। पेशेंट की कंप्लायंस पे होता है, कुछ पेशेंट जो है वो लोकल के साथ कंफर्टेबल होते हैं और कुछ जो है वो ओरल के साथ कंफर्टेबल होते हैं। So oral imidazoles include fluconazole, सिंगल डोज 150 मिलीग्राम की सिंगल कैप्सूल दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है आइट्रोकोनाजोल, ठीक है जी, 200 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे फॉर 1 डे। लेकिन जो ओरल रूट है दैट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती। प्रेगनेंसी में जो है वो लोकल ही हम देते हैं, दैट इज क्लोट्राइमोजोल, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है जी। ये जो तीनों इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडाइसिस और बैक्टीरियल और जो है ट्रिकोमोनास वैजाइनालिस, इनकी आपको ट्रीटमेंट अलोंग विद डोजेस आनी चाहिए। दैट इज द पूरी सिंपल सी ट्रीटमेंट है, दो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, अलोंग विद डोजेस जो है ये सवाल पूछा जाता है। उसके बाद जो लोकल एप्लीकेशन है द क्लोट्राइमोजोल है, इसमें सिंगल एक टैबलेट आती है 500 मिलीग्राम की फॉर द लोकल चैनल इंसर्शन, या इसमें 100 मिलीग्राम की पेस्ट्री होती है, 6 पेस्ट्रीज होती है फॉर द 6 डे ट्रीटमेंट। इसको हम सिंगल 500 मिलीग्राम भी दे सकते हैं या 6 डेज 100 मिलीग्राम डेली फॉर 6 डेज, टोटल यानी कि 600 मिलीग्राम दी जाती है, ठीक है जी। तो ये जो है इसका ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस है, दैट इज फॉर द अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन। अब आ जाती है कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन में, उसमें हमें ट्रीटमेंट एक्सटेंड करना पड़ता है। तो टॉपिकल ट्रीटमेंट इज एक्सटेंडेड अप टू 2 वीक्स। अदर तो हवाई तो हम 6 डेज के लिए देते हैं, लेकिन इसमें हमें जो है वो 2 वीक्स के लिए एक्सटेंड करना पड़ता है। उसके बाद अगला जो केस है दैट इज रिकरेंट, when the patient is coming again and again with the same जो है symptom. At least 4 episodes of infection per year, or positive, mild to moderate to heavy growth of anti-albicans on the culture. Induction में हम क्या कहेंगे? Induction regime जो है initially fluconazole 150 milligram given in 3 doses every 72 hours, यानी कि हम वीक में हमने जहाँ हम एक सिंगल डोज दे रहे थे, हम वहाँ पे 72 आवर्स के जो है इंटरवल के बाद हमने 3 उसको टैबलेट्स दे दी, ठीक है जी। और उसके बाद जो मेंटेनेंस डोज है दैट इज 150 मिलीग्राम वीकली फॉर 6 मंथ, दैट इज फॉर द रिकरेंट इन्फेक्शंस, ठीक है। उसमें अगर कल्चर में हैवी ग्रोथ है या जो है उसमें पेशेंट की जो एपिसोड्स हैं वो ज़्यादा आ जाए, रिपीटेड एपिसोड्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है इसका भी मैं फिर बता रही हूँ कि आपको डोजेस आनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज प्रोटोजोल इन्फेक्शन, दैट इज ट्रिकोमोनास वैजिनालिस। इट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस। It is a flagellate protozoa
It infects the vagina, urethra and paraurethral glands. तो पेशेंट को वेजिनाइटिस के साथ यूरेथ्राइटिस और बर्निंग मिक्चुरेशन की भी कंप्लेंट होती है। एंड इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सो द पार्टनर शुड बी ट्रेस्ड एंड इट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली। अदरवाइज अगर हस्बैंड को या पार्टनर को आप ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट विल अगेन कम विद द सेम इन्फेक्शन। So clinical features include ranges from asymptomatic infection to severe acute inflammatory disease. Usually जो सा color है that is yellowish green, purulent, malodorous, thin frothy discharge. तो bacterial vaginosis से हम इसको बड़ा clearly, एक तो वो उसकी वो fishy डोर है, इसकी malodorous होती है, इसके अलावा वो yellowish green color का discharge होता है इसका ट्रिकोमोनस वेजाइनलिस का। इजीली नेकेड आई एग्जामिनेशन के ऊपर डायग्नोस किया जा सकता है। पेशेंट को आज क्या कंप्लेंट होगी? डिस्यूरिया, एक्सटर्नल डिस्परोनिया एंड प्लूराइटिस इज वेरी कॉमन, जो कि उसको प्लूराइटिस में, उसको कैंडिडा में भी प्लूराइटिस ऐसा भी कॉमन, इन दोनों में कॉमन आ जाएगी। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, उसके ऊपर सर्विक्स के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल से हेमरेजेस होंगे, दैट इज पिक्चर इज कॉल्ड स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। जो सेकंड पिक्चर है उसमें आपको ये नजर आ रहा है कि सर्विक्स सर्वाइकल ओपनिंग है, एक्सटर्नल लॉस है और पूरा जो सर्विक्स है उस पे स्मॉल टाइनी हेमरेजेस हैं, दैट इज द नेम इज गिवन टू स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। ठीक है जी, दैट इज द डायग्नोस्टिक ऑफ ट्रिकोमोनस वेजाइनलिस। ये से क्लिनिकल फीचर्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, नेट। इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड एंड इंडिकेटेड इन सिम्प्टोमेटिक। अगर पेशेंट बार बार कंप्लेंट कर रही है, अदरवाइज अगर सिंगल एपिसोड के साथ आई है तो हम वही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। हम उसे कहते हैं हिस्ट्री लेंगे, स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे। स्पेकुलम एग्जामिनेशन में हमें येलो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज नजर आ सकता है, हमें स्ट्रॉबेरी सर्विक्स नजर आ सकता है। उसके बाद हम वेट माउंट इसमें मिट हो गया, वेट माउंट करेंगे तो हमें फ्लैजुलेट प्रोटोजोआ बड़े क्लियर कट नजर आते हैं। या आपको पिक्चर में भी देख लें कि इस टाइप के दे आर मूविंग अंडर द स्लाइड, बड़े क्लियर कट फ्लैजुलेट प्रोटोजोआ नजर आ सकते हैं वेट माउंट में। तो जब भी आपने वेजाइनल इन्फेक्शन का पेशेंट जो है वो केस प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले जो स्टेप वाइज है उसमें यही हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें स्पेकुलम एग्जामिनेशन, और स्पेकुलम एग्जामिनेशन के बाद जो अगला स्टेप है दैट इज द वेट माउंट। वेट माउंट के बाद जो है वो आता है हाई वेजिनल स्वैब, या उससे कहते हैं यूरेथ्रल स्वैब, या सर्वाइकल स्वैब, एंडोसर्वाइकल स्वैब, हाई वेजिनल स्वैब, यूरेथ्रल स्वैब, ये सारे स्वैब्स आते हैं। तो सबसे पहले हमने वेट माउंट के बाद जो अगला स्टेप है उसमें मूव करेंगे, दैट इज द स्वैब्स फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अच्छा जी, तो न्यूक्लिक एसिड जो नेट टेस्ट इज गोल्ड टू स्टैंडर्ड इंडिकेटेड इन सिम्प्टोमेटिक वुमेन, प्रेफरेबली ऑन वेजाइनल एंड सर्वाइकल स्वैब और यूरिन। ठीक है, वेजाइनल हाई वेजाइनल स्वैब भी ले सकते हैं। सर्विक्स से हाई वेजाइनल स्वैब जो है वो पोस्टीरियर फॉर्निक्स से लिया जाता है। एंडोसर्वाइकल स्वैब ज़ाहिर है सर्विक्स सर्वाइकल ओपनिंग जो है एक्सटर्नल लॉस की वहाँ से लिया जाएगा। सम नेट आल्सो डिटेक्ट नाइसीरिया, गिनोरिया एंड क्लेमिडिया ऑन द सेम सैंपल। ठीक है, तो ये तीनों अगर पेशेंट वाकई एसटीडी का पेशेंट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उसमें ये तीनों जो ऑर्गेनिज्म ये डिटेक्ट हो सकते हैं। ऑप्टिमम टेस्ट इज वल्लो वेजाइनल स्वैब, माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर, या आप उसके लिए कल्चर करा लें अगर न्यूक्लिक सेट ये नेट टेस्ट है ये अवेलेबल नहीं है। वेट माउंट पे आप देख सकते हैं कि इट इज अ ट्रिकोमोन इज सीन इन 50 to 70% ऑफ द केसेस। एलिवेटेड पीएच कैन इंक्रीज ल्यूकोसाइड, ऑब्वियसली इन्फेक्शन है तो ल्यूकोसाइड भी इंक्रीज किए होंगे, लेकिन इस तरह के जो है फ्लैजुलेट प्रोटोजोआ दे आर सीन ऑन द वेट माउंट। ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में सबसे जो मैंडेटरी बात है दैट इज दैट बोथ द पार्टनर्स शुड बी ट्रीटेड, हस्बैंड एंड वाइफ। ऑब्वियसली हमारे यहाँ सोशल इश्यूज हैं, वहाँ पे तो ओपनली ज़ाहिर इस चीज़ के लिए टैबूज नहीं है, तो वो दे विल आस्क फॉर द पार्टनर्स। हम जो है वो वी विल टेक द हिस्ट्री ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री तो नहीं है, बाकी इस तरह के क्वेश्चन हम पूछेंगे, और उसके अलावा हम हस्बैंड को भी साइमल्टेनियसली ट्रीट करेंगे। अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ ट्रीटिंग द फीमेल अलोन। सो ये आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि हस्बैंड शुड बी ट्रीटेड। So treat both partners. Both should screen for other sexually transmitted infection. Dose क्या है? वही 2 grams stat metronidazole is the drug of choice. 500 milligram BD for 7 days. Avoid topical therapy. Treat partners simultaneously. If refractory, retreat with same 7-day
कोर्स। अगर तो ट्रीटमेंट से नहीं फर्क, 7 डेज से फ़र्क नहीं पड़ा तो उसको मज़ीद 7 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर दें। और अगर इफ उसके बाद भी फेल हो गए, ट्राई 2 ग्राम डोज डेली फॉर 3 to 5 डेज। अदरवाइज तो 2 ग्राम की सिंगल होती है, लेकिन उसमें फिर हम, क्योंकि पहले हम 500 मिलीग्राम बीडी दे रहे हैं, तो दैट मीन्स 1 ग्राम, तो उसको फिर हम डोज को डबल कर देंगे, 2 ग्राम डेली फॉर 3 to 5 days, and assure compliance with the partner, and the patient should be, and the couple should be advised to use barrier method of contraception during this period, this is the time of the treatment। ठीक है जी, ये हो गया ट्रिकोमोनास वैजाइनस। उसके बाद जो अदर जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज नाइसीरिया गोनोरिया। ठीक है जी, ये क्या है? इट इज अ ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई and it affects mucus secreting epithelium cells, so it causes cervicitis, endometritis and ascending infection। ये सेल्फेंजाइटिस तक जाएगा, यानी कि ये अपर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी करता है, नेसीरिया गोनोरिया एंड क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है जी। रिस्क फैक्टर्स: couples who do not use barrier method of contraception, it is common seen in urban residents, in areas with disease prevalence, adolescent females particularly, and low socioeconomic groups, and the use of drugs. Transmission is male to female by semen, male to female to male by urethra, so it is a sexually transmitted disease, and it also causes parental transmission, जो कि सबसे इसका जो है बुरा पॉइंट है कि बच्चे को भी स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। वो आपने आई में डिटेल में पढ़ा होगा। इफ द मदर इज एक्टिवली, ये जो एक्टिव पीरियड चल रहा है इन्फेक्शन का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिलीवरी। सो मोस्ट इन्फेक्शंस आर एसिम्प्टोमेटिक। क्या करता है? सर्विसाइटिस करता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विक्स। सो मोस्ट इन्फेक्शंस रिमेन अननोटिस्ड, और असेंडिंग इन्फेक्शन अननोटिस हो जाती है, और अक्सर इट कॉल एंडोमेट्राइटिस एंड सेल्फेंजाइटिस। ये जो है उसके, क्योंकि म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स को, कोलमनर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो ये जो है फ्लोपियन ट्यूब्स के जो है सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनका, क्योंकि उनका जो सीलिया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मूवमेंट ऑफ द ओवा एंड द फर्टिलाइज्ड एग। तो वो अगर ट्यूब वैसे पेटेंट भी रहे, लेकिन अगर उसका सीलिया डैमेज हो जाए तो पेशेंट विल बिकम इनफर्टाइल। तो ये जो है इसका इम्पॉर्टेंट रोल है कि इट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। सर्विसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विक्स, यूरेथ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेथ्रा, so patient will also have complaint of dysuria. Clinical features include non-specific symptoms like abdominal vaginal discharge, intermenstrual bleeding, dysuria, lower abdominal pain और dyspareunia. क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या होगा? म्यूकोपरुलेंट और परुलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज, इजीली इंड्यूस सर्वाइकल ब्लीडिंग। सर्विक्स को टच करेंगे तो एंडोसर्विक्स अंदर से डिस्चार्ज आ रहा होगा, और सर्विक्स जो है लीड टू टच। 50% of women will have with clinical cervicitis have no symptoms. Incubation period is unclear, but symptoms may occur within 10 days of infection. तो अक्सर लोगों को तो सिम्टम होते ही नहीं है, स्टैंडिंग इन्फेक्शन के साथ ट्यूबल ब्लॉकेट हो जाता है। ठीक है जी, ये इसके डिफरेंट इसका रेंज है सिम्टम्स की। डायग्नोस्टिक इज द कल्चर टेस्ट, नैट टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट एंड न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन टेस्ट। ये महंगे टेस्ट हैं, तो कल्चर यूजली जो है हमारे यहाँ तो अवेलेबल है। ट्रीटमेंट फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स, यूरेथ्रा एंड रेक्टम। क्योंकि जब ये नेसीरिया गोनोरिया है तो आप गोनोरिया तो अपने स्वैब जो है वो रेक्टल स्वैब भी लेना है, यूरेथ्रल स्वैब भी लेना है, एंडोसर्वाइकल स्वैब भी लेना है, और हाई वैजिनल स्वैब लेना है। 4 जगह से स्वैब लेना है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉस्ट जो है डायग्नोसिस की वहाँ चली जाएगी। कल्चर, अगर एक कल्चर जो है वो 1,500 से 2,000 में हो रहा है तो टेस्ट पे ही इतने पैसे लग जाएंगे। तो डिफरेंट जो सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप्स दिया जा सकता है, और जो है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ग्रुप दिया जा सकता है। इसमें सेफिक्सिन दी जा सकती है, सेफ्ट्राक्सोन दी जा सकती है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन दी जा सकती है, बट दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जो ये फ्लॉक्सिसिन ग्रुप है ये उसमें प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दीज डिफरेंट ड्रग्स कैन बी गिवन। Pregnant women should not be treated with quinolones or tetracycline. वो आपको बता दिए, the drug of choice will be cephalosporins, or if cephalosporins is not tolerated, then treat with ceftriaxone 2 gram intramuscular once. ठीक है जी। Follow. A test of cure is not recommended if a recommended regime is administered. If symptom persists, perform culture for Neisseria gonorrhea. Any gonococcal isolated should be tested for antimicrobial susceptibility. Follow. Now the
Next infection is the syphilis. Syphilis, although not common in our country, लेकिन उसमें ये भी नहीं है कि है नहीं, हमारे यहाँ वही केसेस जो है अनडायग्नोज ज़्यादातर रहते हैं, पेशेंट जो है वो लेट कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करती है। ठीक है जी, तो syphilis, it is a sexually transmitted disease, you already know. Etiological agent is Treponema pallidum, and disease progresses in stages. Initial surface है, primary, secondary, tertiary, late, congenital syphilis है, तो उसकी different stages है. It may become chronic without treatment. So transmission is sexual and vertical, most contagious to sex partners during the primary and secondary stages. Primary और secondary stages में सबसे ज़्यादा infective है, और transmission जो है वो both sexual transmission भी है और vertical from the mother to the baby भी है. ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म इज ट्रेपोनेमिया पैलिडियम और सब स्पीशीज पैलिडियम, कॉर्क्सक्रू शेप, मोटाइल, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया. It can be cultured in vitro, cannot be viewed by normal light microscopy. तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ये विजिबल है. ये आप देख सकते हैं ऑन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी ट्रेपोनेमिया पैलिडियम, ये इसकी शेप, इस तरह की शेप है इसकी. उसके बाद आ जाती है Treponema pallidum enters the body via skin and mucous membranes through abrasions during sexual contact, also transmitted transplacentally, travels via the lymphatic system to regional lymph nodes and then throughout the body via the bloodstream. Invasion of the CNS can occur during any stage of syphilis. जो न्यूरोसिफिलिस है उसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि बॉडी के किसी भी जो है पार्ट को ये इन्वेड कर सकती है थ्रू जो है ब्रेन, थ्रू द जो म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है वो डैमेज जहाँ होगी तो इट कैन एंटर द बॉडी. प्राइमरी लीजन और शैंकर डेवलप्स एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन. डिजिटल lymphadenopathy classically rubbery, painless, bilateral lymph nodes होते हैं. Serological test for syphilis may be positive, may not be positive during early primary syphilis. तो mostly जो है ये primary syphilis है, it remains unnoticed. So it जो शैंकर है वो it progresses from macule to papule to ulcer. ये रॉबिन्स पैथोलॉजी में सारी जो है ये पूरा सा कोर्स ऑफ द डिजीज बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है और आपने पढ़ा भी होगा. Typically painless, indurated and has a clean base, highly infectious, heals spontaneously within 1 to 6 weeks. 25% present with multiple lesions. Single ulcer भी हो सकता है और multiple भी हो सकता है. ठीक है जी, 1 से 6 हफ्ते में खुद को ठीक हो जाएगा. These are the एक सिंगल जो अल्सर है ये आपको पिक्चर्स में डिस्प्ले हो रहा है. Highly contagious disease. Secondary syphilis occurs 3 to 6 weeks after the primary syphilis. May persist for weeks to months. Primary and secondary diseases stages में overlap भी हो सकती है. तो secondary syphilis का जो lesion है that is the mucocutaneous lesion, most commonly called condylomata lata. Serological tests are usually highest in treated during this stage. So serological tests जो है syphilis के that will be positive during the secondary stage. Manifestations are rash, 75 to 100% of cases, lymphadenopathy, ज़्यादा lymphatic के जरिए ये सारा स्प्रेड होता है. 50 to 80% of cases फिर जो है mucocutaneous lesions, condylomata lata, mucus patches, 6 to 30% of the cases, malaise and alopecia. ये आप देख सकते हैं डिफरेंस के lesions जो है सारी बॉडी पे इन्वॉल्व होते हैं. Latent symptom. Host suppresses the infection enough so that no lesions are clinically apparent. अगर community बेहतर है तो वो उसमें infection suppress हो जाएगी. Only evidence is positive serological test for syphilis may occur between primary and secondary or when secondary relapses, and after secondary stages. Categories include early latent, that is less than 1 year duration, and late latent more than 1 year duration. Now comes the tertiary syphilis. Tertiary syphilis जो है approximately 30% of untreated patient progresses to tertiary stage within 1 to 20 years. ये आप देख सकते हैं कि 1 से 20 साल के अंदर बाद में लेट कॉम्प्लिकेशन, यानी कि डिजीज खत्म नहीं होगी, उसकी रेजिडुअल डिजीज रहेगी और बाद में भी कॉम्प्लिकेशन कर सकती है. Rare because of the widespread availability and use of antibiotic. पेंसिलिन के आने के बाद से ऑब्वियसली जो है इसकी severity कम होगी. Manifestation include gummatous lesions, cardiovascular syphilis and neurosyphilis. ठीक है जी, स्किन पे आप lesion देख सकते हैं.
अब आ जाते हैं congenital syphilis. Occurs when Treponema pallidum is transmitted from a pregnant woman with syphilis to her fetus. It may lead to stillbirth, neonatal death, infant disorders such as deafness, neurological impairment, and bone deformities. Transmission to the fetus can occur during any stage of syphilis. अगर मदर को डिजीज है तो ऑब्वियसली congenital syphilis जो है उसका चांसेस। Fetal infections can occur during any trimester of pregnancy. ज़ाहिर है पहले आपने कुछ डिजीजेज जो है उसमें पढ़ी हुई है, कुछ डिजीजेज जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकती हैं, कुछ सेकंड में, लेकिन जो है ये congenital syphilis ये किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकती है। ये आप इसके लिए दे सकते हैं। Neurosyphilis occurs when Treponema pallidum invades the CNS, may occur at any stage of syphilis, can be asymptomatic. Early neurosyphilis includes clinical manifestations like septic meningitis, meningovascular syphilis, and ocular involvement. Late include manifestations like general paresis, tabes dorsalis, and ocular involvement. So, ये एक मुश्किल डिजीज है ट्रीट अगर ये स्प्रेड कर जाए। Neurosyphilis, spirochetes, and neural tissues. Diagnosis include history, physical examination, and lab. वो obviously आपको पता है कि तीनों steps ही आपने follow करने हैं। History में ask about the history of syphilis, known contact to an early case of syphilis, typical sign and symptom of syphilis in the past 12 months, and most recent serological test for the syphilis. ऑब्वियसली इतनी लॉन्ग टर्म डिजीज है तो पेशेंट को पॉजिटिव हिस्ट्री तो कहीं ना कहीं से तो वो डायग्नोज हो चुकी होगी, तो वो आपको हेल्प आउट कर सकती है। पिछला जो रिकॉर्ड है उसको आप देख सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड ओरल कैविटी एग्जामिनेशन, lymph nodes, skin of the torso, palms and soles, genitalia and perineal area, and urological examination, यानी कि डिटेल एग्जामिनेशन जो है तो उसमें आपको आप देख सकते हैं कि इसमें सर्जन भी इन्वॉल्व होंगे, स्किन वाले भी इन्वॉल्व होंगे और जो है न्यूरो फिजिशियन भी इन्वॉल्व होगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस इंक्लूड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और पीसीआर, serological test, non-treponemal test that is rapid plasma regain and VDR, and treponemal test such as enzymes और TPHA। ये आपको नाम अगर आप याद कर लो तो काफ़ी है, क्योंकि ये ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आते। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इसकी मैनिफेस्टेशन पे आ जाता है। थेरेपी फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अर्ली लेट फेज, benzathine penicillin 2.4 million units intramuscular in a single dose for 12 days, or if it's allergic to penicillin, then doxycycline 100 milligram twice daily for 12 days, और tetracycline 500 milligram 4 times daily for 14 days। ये आप देख सकते हैं कि जिसमें ट्रीटमेंट का टाइम है वो नॉर्मल एंटीबायोटिक जो है जो कि हम 5 to 7 डेज के लिए जाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है, यानी कि 12 to 14 डेज के लिए आपने एंटीबायोटिक कवर देना है एंड साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट ऑफ द पार्टनर वो तो ऑब्वियसली मस्ट है। अच्छा जी, लेट लेटेंट सिफिलिस और लेट सिफिलिस ऑफ अननोन ड्यूरेशन, benzathine penicillin G 7.2 million units total, administered as 3 doses of 2.4 million units intramuscular, each at 1 to 1 week interval. If allergic, doxycycline और tetracycline, उसकी डोजेज जो है doxycycline 100 milligram twice daily और tetracycline 500 milligram। तो लेट सिफिलिस में जो एंटीबायोटिक है वो तकरीबन 28 डेज पूरा महीना ही दी जाती है। समरी, so knowledge of modern test and management of genital tract diseases should be emphasized. Important history, जो history taking जो है that is very important. This is important in gynecological practice as these conditions are common in women and have serious implications. This can be managed to minimize the risk of complications and transmission. Complications इसमें सबसे क्या हो सकती है? Lower genital tract infection से, इससे upper genital tract infection होगी, PID and infertility. Infertility, ट्यूबल डैमेज होगा तो सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट पीआईडी के बाद पेशेंट को होती है वो इनफर्टिलिटी, और अगर पेशेंट कंसीव कर भी लेती है उसके बाद जो है जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द डैमेज ट्यूबल डैमेज। ट्यूबल डैमेज जब एक दफ़ा हो जाता है तो रिवर्ट बैक नहीं हो सकता, इसलिए इनिशियली जो है इसको ट्रीट करना इन्फेक्शन को दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर इनफर्टिलिटी इशू नहीं भी है तो जो पेन है उसके साथ मरीज रिपीटेड जो है ओपीडी में हर महीने आता रहेगा, उसकी पेन नहीं ठीक हो रही,
क्यों पेन क्यों नहीं ठीक होती? एक दफ़ा जब इन्फेक्शन हो जाती है, वहाँ पर स्कारिंग हो जाती है, डीएन बन जाती है, तो फिर वो जो है उसको अपने वर्ड बैक नहीं कर सकते एंटीबायोटिक से, उसके साथ भी पेशेंट को ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और वो रिपीटेडली जो है मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो शायद समझेंगे कि एक के पास जाएंगे फिर दूसरे के पास जाएंगे तो हमारी पेन ठीक हो जाएगी, लेकिन अक्सर पेशेंट जो है उसी तरह हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं और वो पेन जो है वो ठीक नहीं होती। इसलिए इनिशियल ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ क्लेमिडिया, नाइसीरिया गिनोरिया तो आपने कर दिया, क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमिडियल इन्फेक्शन जो है वो भी लाइक सेम है नाइसीरिया गिनोरिया की तरह, दैट इज कॉल्ड सर्विसाइटिस एंड यूरोथराइटिस। और उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इन्फेक्शन है वो अननोटिस्ड होती है और असेंडिंग इन्फेक्शन होके जो क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस है इम्पॉर्टेंट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है कॉजिंग द ट्यूबल डैमेज। ट्यूबल डैमेज और इनफर्टिलिटी और इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सारे कॉमन है क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस के साथ भी, क्योंकि ये भी अक्सर जो है अननोटिस हो जाती है। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी वो नेट टेस्ट है और इसके साथ स्वैब जो है आपने वो लेने हैं, वो एंडोसर्वाइकल, हाई वेजिनल, रेक्टल और यूरेथ्रल स्वैब। ये जो है ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है इनकी सेम रिप्रेजेंटेशन होती है। और इनकी अदर मैनिफेस्टेशंस क्या हैं? अगर ये डिसेमिनेट कर जाए तो ये कंजक्टिवाइटिस भी कर सकते हैं, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस भी कर सकते हैं, रैश भी हो सकता है। और उसके अलावा ये आर्थराइटिस, जो लार्ज सिंगल जॉइंट है, मोनो आर्टिकुलर जो है आर्थराइटिस जो होता है, वो भी ये नाइसीरिया गिनोरिया भी और क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस भी, ये भी इसकी उसमें रिप्रेजेंटेशन में आ सकता है कि जो सिंगल जॉइंट है, लार्ज जॉइंट, सिंगल नी जॉइंट है, उसमें अगर आर्थराइटिस है वो भी अंडरलाइन जो है वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से हो सकता है। So that's all for today's lecture. इंशाल्लाह कल जुमेरात को आपका सेकंड लेक्चर होगा pelvic inflammatory disease. Thank you. Stay blessed.